یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے آج کا کیس جو جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کو اگر سر دست دیکھیں تو اور نوعیت ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس ریز ہو رہے ہیں جس پہ وہ جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کی طرف کہ یہ جو اس وقت آنریبل سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے اور وہ پٹیشن آئی پی ڈی ایم کی جب حکومت بنائی تھی، جس بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور جس بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان یونس بٹ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جناب اسٹوڈیو میں جوید اقبال گریز صاحب، جبکہ ٹیلی فون لائن پر سینئر قانوندان جناب منور اقبال گوندل صاحب بھی موجود ہیں۔ آج بہت زیادہ خبریں ہیں، ہم اس سے پہلے کہ اپنی خبروں پر واری باری جو ہے وہ بات کریں، ہم ساتھ ساتھ ہی خبریں جو ہے وہ آپ کے علم میں لاتے رہیں گے اور اس پر تجزیہ پیش کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں منور اقبال گوندل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی گوندل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گوندل صاحب، آج مخصوص سیٹوں کے حوالے سے 13 رکنی بینچ نے سماعت کی، اس سماعت سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ اطہر من اللہ سمیت بہت سے دیگر جو معزز جج صاحبان تھے انہوں نے تو بڑا جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق باتیں کی ہیں، گو کہ پی ٹی آئی کے تحفظات تو ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا اب 13 رکنی بینچ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی موجودگی میں، ویسے تو روٹین میں دیکھا جائے تو جس طرح وہ ہیئرنگ وہ پیشنس دکھا رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح چیف جسٹس یا ججز کو ہونا چاہیے، وہ کس طرح انٹرپٹ کرتے ہیں اور ارریلیونٹ کوشچن کرتے ہیں، یہ سارے باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ الیکشن جس کا یہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اس کی اگر بات کی جائے، یہ 2 پوائنٹ اس لیگل پوائنٹ کی طرف آئیں یا یہ فیکچول دیکھیں کنٹروورسی، تو یہ اس کا سارا جو بیڑا گرک کیا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ہے، جو اس سے پہلے جو ان سے تحریک انصاف سے یہ بلے کا نشان لیا اور یہ جو پارٹی جو ہے تحریک انصاف اس کو ختم کیا، اور الیکشن کمیشن کی جو وہ سو کارڈ جو پٹیشن تھی جو جس میں وہ پشاور ہائی کورٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کا جو انتظار کرتے رہے، وہ چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آ گئے، رات کا ٹائم تھا اور اس وقت انتظار ہوتا رہا، یہ ٹکر چلتے رہے ہیں ساری میڈیا کے اوپر کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور گیٹ کھلے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پٹیشن لے کے آئے، اور اس طرح کا ہم نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک عدالت جو ہے جو ایک نیوٹرل ہے، جس نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروانے تھے، اس کا چیف الیکشن کمشنر ایک پارٹی بن کے ایک پارٹی کے خلاف جو پاکستان میں سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک پٹیشن آتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیتے ہیں اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور جس سے یہ سارا فطور پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد اگر آئے تو یہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک قانونی پیچیدگی تھی کہ آزاد جو ہیں ان کو ایک ٹائم تھا کہ وہ کسی پارٹی میں جوائن کریں، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جو جس طرح بندر بانٹ کی یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو اس کے دوسرے جو کرتا دھرتا ہیں جو اس ملک کو برباد کر رہے ہیں، اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں پاکستان کا، ان کی مشاورت سے جس طرح بندر بانٹ کی گئی کہ جن کا کوئی استحقاق ہی نہیں تھا، ان کو وہ سیٹیں مل ہی نہیں سکتی تھی، دیکھیں کہ کس طرح ان کو وہ سیٹیں دی گئیں، جو کہ یہ جو پارٹی ہے جو جوائن کی تھی تحریک انصاف والوں نے، اس کو ان کے شب خون مارا گیا، اس کے اوپر جو مینڈیٹ تھا اس کا چرایا گیا، پہلے سب کچھ ہوا، لیکن اب چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے بیفور دا اپیکس کورٹ، اگر اس کی بات کریں تو اس کی ہیئرنگ میں چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح وہ ایک
तरफदार बन के बैठे हुए हैं। इस तरह चीफ जस्टिस कभी भी अदालती अमूर को नहीं चलाते और ना ही उनका कभी हमने देखा है, क्योंकि जज का काम है कि वो सुने और सुनने के बाद जो है ना उसका फैसला बोले। लेकिन बदकिस्मती है, ये चीफ जस्टिस साहब तो पता नहीं कहीं किस तरफ से छलांग लगाते हैं और कहाँ चले जाते हैं और कहाँ से छलांग लगा के फिर वो जमीन बोस हो जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा हुआ है, जो मैटर सब जुडिस है बिफोर द अपेक्स कोर्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो जो दूसरे वो जो एक हमारे मुल्क का जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उनके हवाले से जो अब प्रेशर है वो उतना प्रेशर नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। जिस तरह अवाम पाकिस्तान ने खुला, जिस तरह उसके साथ फ्रॉड किया गया तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन अवाम पाकिस्तान ने इमरान खान की जो है वो उसमें जिस तरह वोट डाले और उसकी पार्टी को जिस तरह जितलाया गया और पूरे पाकिस्तान में वो जो एजेंसीज हैं या वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको मुंह की खानी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला अब जब के ये मामलात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो है रेस्पेक्टेबल जजेस, वो अब इन बातों में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। जिनका मैंडेट है इंशाअल्लाह ताला उनको मिलेगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है और इनके हवारी जो है इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा गोंदल साहब, अगर पीटीआई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तफजात हैं तो उनके खिलाफ अदम इत्माद क्यों नहीं कर देते? अदम इत्माद करने में उनका क्या नुकसान है या अब तक अदम इत्माद ना करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें कि ये बड़ी सिंपल सी बात नहीं है सर, ये बड़ी कानूनी और बड़ी गहरी बात है सर जो आपने सवाल जो उठाया है जनाब। इसमें देखें कि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये पाकिस्तान की आखिरी अदालत है और उसमें भी अगर देखा जाए तो अब जो अमेंडमेंट हुई है, जो ऑर्डिनेंस बने हैं, उसको सारे को पसे पुश डालते हुए अब देखें कि फुल कोर्ट बैठी हुई है। जब फुल कोर्ट बैठी हुई है और उसको हेड तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये किसी की मतलब वो तरफदारी तो हो रही है, वो तो सब लोगों को है, लेकिन इसके अगर वो तरीके इंसाफ इसका बाइकाट करती है या आदम एतमाद करती है तो उसके पास अल्टरनेट कोई नहीं है ना सर। तो हमने रहना तो इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर ही रहना है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा तो कोई नहीं है। लेकिन ये जो मावरा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि इनकी गिरफ्त होगी। अभी तो ये हम जब बात करते हैं तो लोग तमस्कर उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि देखें कि नवाज शरीफ और उसके जो दूसरे उसकी बेटी और दूसरे जो करप्ट लोग थे जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो जो है उनको कन्विक्शन भी हुई और आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। वो वक्ती तौर पर वो हम जो है उनकी बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे यहाँ जैसा हुआ है जो माजी में अब हमने देखा है, माजी करीब में इस तरह का पूरी दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं हुआ, ना इस तरह का किसी दुनिया में इलेक्शन हुआ, ना इस तरह की अदालती अमूर जो है उन्होंने मुदाखलत की, ना इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मुल्क की जो है वो शराजा दिखारा। लेकिन अब सारी बातें जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अब तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जो है वो इत्माद करे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो कि एक वाइस चीफ जस्टिस है, इंशाअल्लाह ताला जो है वो ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जो जजेस बैठे हुए हैं वहाँ, वो जो है वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे और जिनका हक है उनको देंगे इंशाअल्लाह। आज की अगर हम जो समाअत के दौरान तमाम जजेस सबान जो 13 रुकनी थे उनके रिमार्क्स तो सामने आते रहे हैं। सलमान अकरम राजा समेत दीगर वकला ने भी जो आपके सामने केस को ज़ेर बहस लाया है, आप क्या नतीजा खस कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हालात व वाक़यात क्या नज़र आ रहे हैं? हम इससे क्या फ़ैसला तो जज साहब नहीं करना है जो भी वो करें, लेकिन फिर भी बहुत से केस ऐसे हैं जैसे साइफर का केस था, पहले ही पता चल गया था नहीं ये बरकरार नहीं रह पाएगा। सन 9 मई के बहुत से मुकदमात हैं जिसके मुतल्लिक़ हमने यही सोचा था कि ये सब कोई भी इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने शहादतें पेश की हैं ये कोई परफेक्ट नहीं है। वक़्त वकूए के हवाले से एक ही वक्त में लाहौर हमला हो रहा है, मियाँ वाली हो रहा है, गुजरांवाला हो रहा है, तो वो अब सामने आ रही हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें मुल्ज़मान बरी होते जा रहे हैं और प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी बुरी तरह जनाब ना सिर्फ बदनाम हो रही है बल्कि बड़ा इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक चलाई गई। तो इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आज की जो
समाअत थी, उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना भाईजान, अगर उसको प्रोसिक्यूशन की देखा जाए, 9 मई का जो ड्रामा एक रचाया गया और जिसके ऊपर जो है पूरे मुल्क में आज तक जो है वो कहते हैं कि आके इसको कंडेम करें और क्लीन चिट लेके चले जाएं, और वो पॉलिटिकली एक जो है हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया। और ये जिस तरह का हुआ जी गोयल साहब, मैं चाह रहा था इस पे मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात कर रहा था कि आज उस पर भी बड़ी बात हुई और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी ये केस को उस वक्त से लेना चाहिए कि ये देखा जाए कि जब ये लोग फॉर्म जमा करवा रहे थे तो उस वक्त किस जमात से ये फॉर्म जमा करवा, यानी कि उन्होंने कहा कि बुनियादी जहाँ जहाँ से गलतियाँ हुई हैं वहाँ से केस को देखा जाए, सारी चीज़ों को सारी बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है। मेन इस केस में बात ये है जो आप सर्व कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब क्या मतलब है कि अकेले चीफ जस्टिस तो फैसला नहीं दे सकते, अब तो 13 रुकनी जज साहबान में से हर बंदे ने अपना अपना इसमें जो भी नोट लिखना है, जो भी इसमें अपना फैसला सादर फरमाना है, तो आपके ख्याल में क्या मतलब फैसला हो सकता है? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जो बात हम कर रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो है आज का केस जो जिसकी हियरिंग हो रही है, इसको अगर सरेदस्त देखें तो और नवीयत है, लेकिन ये जो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं जिस पे वो ऑनरेबल जजेस ने पॉइंट आउट किया है उसकी तरफ कि ये जो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जो मैंने अर्ज किया था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए और वो पिटीशन आई, ये वहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। अगर वो ना होता तो आज ये सूरत ना बनती और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और ये जो घुसपैठी है, ये फॉर्म 47 की पैदावार जो है ये इक़्तिदार में ना होते। लेकिन अब जब के इस केस के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो अगर वो जजेस उस तरफ चले जाते हैं तो वो मलिशियस माइंड जो उनका मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ दैट कि ये जो प्रायर टू इलेक्शन एक रिगिंग हुई और उसमें किसने ये की, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हैं। और जैसा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी अपने बयान में उस वक्त कहा था कि ये रावलपिंडी डिवीजन की जितनी सीटें हैं ये तहरीक इंसाफ में जीती हुई हैं और ये सारी की सारी जो मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं ये सारी की सारी जो है फॉर्म 47 की पैदावार हैं। और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सर भाई ये बड़े गौर तलब बात है जो मैं कर रहा हूँ, उसने कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था वो चट्ठा जो है किधर है आजकल चट्ठा साहब? मंजरे आम से गैब हैं, चट्ठा साहब आ गए हैं सामने, गैब हैं, क्या हालात हैं उनके? लेकिन वो अभी तक नहीं आए ना, देखें कि वो सेफ हैंड क्या वो पीटीआई की सीटें वापस लेके क्या वो उस वक्त सामने आएंगे जब पीटीआई को सीटें मिल जाएंगी? मैं सर वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं वो उसकी तरफ ही मैं इशारा कर रहा हूँ कि देखें कि उसको लाया गया था ना कि और उसने हकीकत आके बयान की थी ना, उस वक्त इनको खतरा उसको था तो इसलिए लाया गया था कि उसको तो इसलिए लाया गया था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत करने को तैयार नहीं थे, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो फिर उसको सामने लाके ये मैसेज दिया गया कि अगर आप जनाब मोहतरम मुस्लिम लीग नून वालों को कहा गया, पीपल पार्टी को कहा गया, तो फिर ये कुछ भी हो सकता है जो जनाब लियाकत चट्ठा साहब कह रहे हैं, वो तो इसलिए लाया गया था उन्हें। सर उसके साथ ही साथ जितने भी सियासी आदमी हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं और असेंबली में वो आके बातें कर रहे हैं और उन्होंने कहा ना कि ISI और जो मुल्क के दीगर जो इदारे हैं इन्होंने इस इलेक्शन में पैसे पकड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानूनी जो तकाजे थे उस केस में कौन कौन से होने चाहिए, क्या हो रहा है, क्या फैसला आ सकता है, आपने अपने जो है वो नुक्ता नज़र बयान किया। जी गुरैश साहब, आपने डिटेल से बात सुनी, तो आज बड़ी बहस हुई, आपने भी बहस को सुना, हमने भी सुना, तो आप अब क्या देख रहे हैं, कौन कौन से जज साहबान को आप देख रहे हैं कि इस केस की मुखालफत में जा रहे हैं, कौन कौन से जज 13 रुकनी बेंच में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं PTI को सीटें मिल जाएं, या आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं जनाब? देखें जी, ये तो अब क्योंकि केस अदालत में लगा हुआ है इसलिए इससे कबल तो हम कोई भी बात कोई कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि मतलब बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हो रही थी। ज़ाहिर है उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बातें भी हुई, ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन भी हुए, लेकिन अच्छा दौरान समाअत अचानक एक खतून के मोबाइल की ना लाइट जल गई जब चीफ जस्टिस साहब
वहाँ कुछ फरमा रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने उस खातून पर बड़ी बरहमी का इज़हार किया कि इसका फौरी मोबाइल चेक करें, ये क्या मेरी तस्वीर बना रही है यहाँ की या क्या कर रही है। खैर यानी कि इस तरह के मनाजर भी सामने आए, तो ये भी आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे पता है। नहीं, ये देखें, ये इस तरह के कमेंट्स के ऊपर अब क्या कहा जा सकता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े के हेड हैं, और वो क्या बात करते हैं, नहीं, आप क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, क्या के जज के साथ हुआ, जो रावलपिंडी के साथ हो रहा है, या दीगर 6 जजेस साहबान ने जो ख़त लिखा है, तो आपका मकसद था कि उनका चीफ जस्टिस को इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है या किस तरह की। देखें, चीफ जस्टिस साहब को तो सब चीज़ों का इल्म है, उनके इल्म में है। देखें, 6 जज साहबान का ख़त आया, वो भी उनके इल्म में है। कैसे इलेक्शन हुआ, वो भी उनके इल्म में है। लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने जो बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुल्लम खुल्ला इनका भी नाम लिया, तो ये भी सारा क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। लेकिन अब हमें ये देखें, बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, बड़ी ज़्यादती हुई है जो कि जिसको कि हम ने बहुत ज़्यादा इस आवाम ने फेस किया है, और उसके नतीजे में अब जो बजट आया है, आप देखें कि एक आदमी जो बाहर से आया यकदम और आके उसने बजट बना दिया, जैसे बैंक का बजट बनाया जाता है, IMF का बजट बनाया जाता है, ऐसे बना के, और उसने इतने टैक्सेस की भरमार कर दी कि कोई खाने की चीज़ जो है उस पे जो है ये कहा जाए कि टैक्स नहीं लगा तो वो भी लगा दे। इशू है वो बजट इशू नहीं है, लेकिन मैं ये मिसाल देता हूँ कि ये सारी बातें इनके इल्म में है, ये सब कुछ इनके इल्म में है कि ये कैसे, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, हर चीज़ इनके इल्म में है। अब इसमें ये है कि हमारी मेरा ख्याल है कि अब जजेस साहबान जो हैं वो पहले वाली बात नहीं रही, अब इनमें बड़ा जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरिट पे फैसला करेंगे, और क्या फैसला आता है ये अब वही बता सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे ये भी लगता है इनके खिलाफ भी आ सकता है, इनके हक में भी आ सकता है, लेकिन ये तो पता चलेगा जब फैसला आएगा। नहीं, ज़ाहिर ऐसा लग रहा है गुरैश साहब कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातों को ये सीटें अब मिल नहीं पाएंगी, या तो ये PTI को वापस मिल जाएंगी या फिर ये किसी को भी नहीं मिलेंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस मुल्क में हर चीज, इससे कबल वक्त कोई बात नहीं, इस मुल्क में हर चीज मुमकिन है, क्योंकि अच्छा एक बात देखी होगी गुरैश साहब, अब आपने अब अदलिया ने स्टैंड ले लिया, आपने देखा होगा, यही वजह है कि ATC जो सरगोदे के जज हैं, जब ISI के जिस भी यानी कि रहनुमा की जानब से, जिस भी शख्स की जानब से उन्हें मुलाकात का कहा गया, पहला दिन था, उन्होंने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो साबिक चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने पूरी उसमें डिटेल लिखी, मुझे पहले दिन ही मैसेज मिला कि आप मुलाकात करें, चैम्बर में आकर मुलाकात करें। तो सही है, उन्होंने मुलाकात नहीं की। सही है। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं डर नहीं गया, सिर्फ मैं ये जो कुछ मेरे साथ पेश आया है मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, लेकिन फैसला मैं, उसने कहा कि अल्लाह की ताकत को मद्देनजर रखते हुए ही सादर फरमाऊंगा, और उसने 70 लोग जो सिटी मियाँ वाली के 2 मुकदमे थे उसमें जो लोग गिरफ्तार थे साने में, सबको उसने जनाब बरी कर दिया। आप देखें कि उसने प्रोसिक्यूशन की बकायदा सरजनश की है, उसने कहा ये क्या है आपने, ये कोई शहादत ही नहीं है, आप सारा बोगस तैयार करके आप ये देखें कि कहने का मकसद ये है कि जो अपर जुडिशरी है या सीनियर जुडिशरी है वो तो स्टैंड ले ही रही है। अब आप देखेंगे नीचे तक सेशन जज टाइप उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर भी एक ज़मीर है, हमने भी एक जगह पे जाके हिसाब देना है। तो अब देखें कि किसका ज़मीर ज़िंदा है और किसका ज़मीर ज़िंदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एज ए मुस्लिम, बीइंग ए मुस्लिम, हमें, क्योंकि ये हम तमाम लोग हलफ उठाते हैं कि हम जो भी, आप देखें सूरत रहमान में भी बड़ा क्लियर कट है कि आप जो है सही इंसाफ से वज़न करें, ठीक है ना, तो लें। तो सब यह एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो अदलिया की जानब से एक अपनी जनाब अदारे की सरबुलंदी के लिए समझ लें या अदारे
کو سرخرو کرنے کے لیے جو اس پہ الزامات آتے رہے ہیں کہ جناب عدلیہ جو ہے دباؤ کا شکار ہے، یہ وہ عدلیہ نے باقاعدہ سٹینڈ لے رکھا ہے اور وہ کسی بھی غلط کام کو اب جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے سرگودا کے جو ATC کورٹ کے جج ہیں، چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی ATC کورٹ کے جو جج ہیں، یا دیگر بہت سی عدالتوں کے پچھلے دنوں جب فیصلہ ہو رہا تھا عمران خان کی عدت کیس میں، تو اس وقت بھی جناب انہوں نے آ کے رفع ڈال لیا کہ نہیں جی یہاں سے کیس ٹرانسفر کیا جائے۔ یعنی کہ اب جو یہ چاہتے تھے کہ ہر جج ان کی بات مان کے جو یہ کہیں وہ کرتا جائے، اب وہ ایسا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کب ایسا ہوگا۔ جی گریز صاحب آپ اس پہ کچھ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اب جج صاحبان جو ہیں بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گریز صاحب 6 جو معزز جج صاحبان تھے ان کے خط کے بعد بڑا فرق پڑا ہے۔ جی ہاں بالکل جناب آپ کچھ اور آج جو وہ ٹربیونل والا مسئلہ تھا اس پہ خاص سے الیکشن کمیشن کا ٹربیونل تبدیلی کا آرڈر انہوں نے معطل کر دیا۔ جی ہاں وہ کافی چیف جسٹس صاحب کافی اس پہ ہاں جی ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے۔ تو ان ساری چیزوں سے لگ رہا ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونے جا رہے ہیں جناب۔ تو اور وہ جو پریشر تھا وہ جو مختلف جگہوں سے ان کے اوپر تھا، اب وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پریشر نہیں لینا، ہم نے خدا کو جان دینی ہے، ہم نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے موسٹلی میرٹ پہ ہوں گے۔ گریز صاحب کوئی بھی یعنی کہ ملک کے اندر سیاسی جماعت ہو، کسی کے پاس بھی اقتدار ہو، جب ہماری عدالتیں دباؤ کے بغیر یا آزادانہ فیصلے قانون کے مطابق، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کے بغیر فیصلے نہیں کرتی، قانون سے ہٹ کے کرتی ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم نے کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرنا، حقائق پر کرنا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں مسئلہ ہی یہاں پھنسا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو پیچھے حالات اگر یہ بلے کا نشان واپس نہ جاتا، قاضی صاحب ڈٹ جاتے کہ یار ایک سیاسی جماعت ہے اس کا حق ہے، تو یہ اتنا رفڑ ہی نہیں پڑنا تھا۔ وہ سیاسی جماعت کا نشان نہیں تھا، وہ عوام کا نشان تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیے تھا کہ وہ اگر اپنے پسندیدہ کسی بندے کو انہوں نے ووٹ دینا تو ان کے لیے آسانی تھی۔ تو یہ انہوں نے یہ بالکل اس کی غلط اس کی جو ہے اس کو ایکسپلین کیا کہ جی یہ پارٹی کا نشان ہے۔ اچھا اس لیے دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو اجلت میں 18 20 گھنٹے بانی PTI کے کیسز کی سماعت کر کے سزائیں سنائی گئیں، اور سزائیں 32 سال تقریباً سزائیں سنا دی گئیں جو اوور آل بن رہی تھیں۔ تو بظاہر یہ میسج دیا گیا کہ آپ کا لیڈر تو 32 سال جیل میں پڑا ہے، آپ اسے ووٹ دے کے کیا کریں گے؟ بظاہر یہ میسج تھا کہ اس کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا۔ دوسرا جو انتخابی نشان چھیننے کے مقاصد تھے وہ آج نظر آ رہے ہیں کہ جب اس کا بھلا ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کہیں بیلٹی ہوگی، کہیں گاجر ہوگی، کہیں مولی ہوگی، کہیں جناب کوئی نشان ہوگا، سارے یہ نشانات، تو انہیں ووٹ ہی نہیں ملے گا، عوام میں یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو اتنی یعنی کہ زیادہ مقبولیت مل چکی ہے اور اتنے زیادہ ووٹ مل جائیں گے۔ اب وہ جناب اس کی وجہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے جناب، اس کی ورتھ ہے جناب، اس کا جو ہے کہ وہ کیسے اس نے اپنا جو وقت گزارا ہے 4 سال، اور اس کا پچھلی ساری زندگی سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے کیسے زندگی گزاری۔ اب اس ملک میں جو سو کالڈ سیاسی جماعتوں نے جیسے لوٹا ہے اس ملک کو، اور جیسے وہ پیسہ باہر گیا ہے، اور اب ہم لوگوں کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور ہر ملک جو ہے جس کی منتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں، پھر ہم بھی ادھر جو ہے۔ اچھا صاحب ہمیں ماہر قانون ہیں، سینئر آدمی ہیں جناب اسرار گیلانی صاحب، انہوں نے جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی گیلانی صاحب السلام علیکم۔ گیلانی صاحب کی میں نے فنی خرابی کی وجہ سے لائن کٹ گیا۔ جی بات جاری رکھیے گیلانی صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ نشان جو ہے وہ عوام کا نشان تھا، یہ عوام کا نشان تھا۔ اور گیلانی صاحب ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے 2 دن پہلے، اور قومی ایشو پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا بھی چاہیے۔ کیا ہوا ہے کہ چائنا وہ ہماری جو ہم کیا وہ لائن جو بچھانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سی پیک پر
ایک سیمینار ہوا, چائنی لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تمام پی ٹی آئی سمیت جماعتوں نے وہاں شرکت کی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہیں, عمر ایوب بھی گئے ہیں, اور انہوں نے میسج دیا کہ جی ہم اس ایشو پہ اکٹھے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں محب الوطن جماعتوں کا یہ تو ہے کہ اگر ان کے ملک کی ترقی کے لیے سب اکٹھے ہیں جناب, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ دیکھیں نا وہ چائنا اب ان باتوں پہ زور دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ حکومت جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے, اس لیے وہ اس پہ جو انہوں نے اعتماد کا اظہار ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم اس ملک میں گئے ہیں تو ان کو استقبال بھی ایک نائب ناظم نے کیا ہے. بس وہی گریز صاحب, سچی بات یہ ہے کہ نہ ہمیں سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں, نہ ہمیں چائنا نے پیسے دیے ہیں, نہ ہمیں یو اے ای نے پیسے اور چائنا نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جناب پھر وہ بات وہی کرنا پڑ جاتی ہے کہ وہ تھیٹر ڈراموں میں وہ جو جناب ہمارے مزاحیہ وہاں لوگ تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں ہم دوسرے لفظوں میں مراسی کہتے ہیں, وہ بڑے کام کے لوگ ہیں, بعض اوقات بڑی کام کی بات کرتے ہیں. ٹھاکر کیا کہتا ہے, وہ دبئی میں پھر رہا کہتا ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے, یہ بھی ہمارا گھر ہے, یہ بھی ہمارا گھر ہے. وہ سب یعنی کہ گھروں کو کہہ رہا ہے یہ ہمارے گھر ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب تو ہم سارے لوگ ادھر آ گئے ہیں, ہم یہ بڑے بڑے گھر ہمارے جتنے امیر پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ کہتا ہے یہاں آ گئے. آپ دیکھیں کہ مقصد یہ ہے کہ اب دوسرے لوگوں سے ہم انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, تو ہم خود تو جا کے جناب دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. مطلب ہم اب سارا پیسہ جو ہے باہر کے کنٹریز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ اپیل نہیں کر سکتے چیف جسٹس پاکستان سے, قاضی صاحب سے, یا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ کم از کم یہ ہمارے بڑی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں, جو قائد ہیں, ان کا بیرون ملک سے پیسہ واپس لا کے اس ملک کو خوشحال کر دیا جائے؟ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کی بات, آپ نے بڑی معصوم بات کی ہے. نہیں, آپ اگر اپیل کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے بڑی سادہ ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ نے بڑی سادہ دلی سے بات کی ہے. اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنائی تھی, جس بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور جس بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اس پہ یعنی کہ ان کو نہیں پتا تھا. نواز شریف کے سابق ترجمان ہے زبیر عمر, اسد عمر کے بھائی جو کراچی سے ہیں, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جی بالکل یہ طے ہوا تھا, باجوہ صاحب نے میں بلوایا تھا, اور یہ رجیم چینج کا فیصلہ ہوا تھا. یہ ساری چیزیں اب باری باری کھل کے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں یہ سب کو پتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ تو زبیر صاحب آپ کہنا شروع ہو گئے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس سب کو نظر آ رہا تھا جیسے جیسے کام ہوا ہے. کیا یہ قوم بہری ہے, اندھی ہے, یا عقل سے عاری ہے, کیا ہے؟ اس قوم کو اتنا نہیں پتا. بچہ بچہ جان رہا ہے, بچہ بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. چیف آف آرمی اسٹاف تو بڑے اس معاملے میں سیریس ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو, تو وہ تو ذاتی طور پہ انہوں نے آپ کو دیکھا کہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے وہ جناب مختلف ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں تاکہ یہاں پیسے لے کے آئیں. تو اب ہمیں لیکن پیسے مل نہیں پا رہے, نہ ہمیں چائنا پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہمیں یو اے ای نے پیسہ جو وعدہ کیا تھا. بالآخر وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ محسن نقوی نے پر وہی کہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا جناب؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, وہ درمیان میں آپ نے ایک نیا کام کر دیا نا, وہ پراپرٹی لیگز آپ نے جاری کر دی. پراپرٹی لیگز میں آپ نے یہ جائیدادیں آپ نے دکھا دی ہیں کہ جناب دبئی میں. آپ اس ملک میں یہ اب آپ نے دیکھا کہ عزم استحکام آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. یہ میرا کل کا پروگرام کا حصہ ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. جی جی. دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور بے شمار کرائمز ہو رہے ہیں ملک میں. آپ روز کی اخبار اٹھائیں, کراچی کا اٹھا لیں یا لاہور کا اٹھا لیں, وارداتیں ہی وارداتیں. جنگ اخبار میں یہ ہیڈنگ ہوتا ہے, وارداتیں ہی وارداتیں, لوٹ مار ہو رہی ہے. ہاں جی, کراچی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. اچھا سن, نہیں یہ تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ, لاہور پولیس نے بھی پریس کانفرنس, نہیں وہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کی نہیں آگے بات کرنے دیں نا آپ. میں آپ کی طرف آنا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیاری کو نہیں, کسی ڈپٹی کمشنر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے, تو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. انجوائے کرنے آئی ہیں, وہ کیسے چھوڑ دیں؟ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے حکومت کس کی ہے جناب.
हुकूमत किसकी है, कौन हुकूमत कर रहा है। हाँ जी, आप अब देखें कि ये जो है ना, आप क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर जगह पे बढ़ गए हैं। आप एक हैरान कुन बात देखें कि सदर आसफ अली जरदारी सखर में जाके खुद मीटिंग ले रहा है अमन व अमान के लिए, यानी सखर के इलाके में अमन व अमान के लिए। मैं कहता हूँ ये खुशाइन बात है ना, ये खुशाइन नहीं है, आपका सदर पाकिस्तान ये चाहता है, ये खुशाइन नहीं है, ये खुशाइन नहीं है। अगर उसने ये सदर पाकिस्तान नहीं एक एक शहर में जाके मीटिंग लेनी है तो फिर चीफ मिनिस्टर किस मर्ज की दुआ है जी? या तो वो अपने लोगों को वहां पे कंट्रोल करने के लिए जा रहा है। ये जिस तो तरह बता सकते हैं कि उस मीटिंग के हकायक क्या जनाबे हजूर, ये जिस तरह सदर की एक मीटिंग से सिंध में अमन कायम हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात मैं कहता हूं। वो तो सखर में मीटिंग लेने जा रहे हैं, वो बारी बारी हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ये तो नहीं पता अब उनका क्या एजेंडा है कि सखर में ही मीटिंग, मतलब फिर इसका मतलब चीफ मिनिस्टर का कोई काम नहीं है, ये तो चीफ सेक्रेटरी का कोई काम नहीं है, आईजी का कोई काम नहीं है, नहीं वो उनकी टीम के वो आप ये देखें। जनाब। एक बात जरा मेरी अर्ज सुन लें कि इस मुल्क पे माफिया का कब्जा हुआ है। जनाब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जनाब, और ये जितने जराइम हो रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन करना चाहिए। आप सिर्फ एक काम करें कि ये जो मुजरम है, जिसने पैसा लूटा है और जो है कल्प्रिट साबित हो चुका है, उनको फौरी तौर पे अंदर बंद कर दें। आप देखेंगे अच्छा, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा गुरैज साहब, जो प्रॉपर्टी लीक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हुई थी, मेरे ख्याल में उसमें पीटीआई के लोगों के नाम नहीं है, वरना अब तक को शायद उन्हें पकड़ लिया जाता, बाकियों पे तो शायद फिर तो रोज उसकी वो लिस्ट लगती। अब वो लिस्ट कभी नजर नहीं आई। सुना उसमें मोहसिन नकवी के नाम की भी कोई प्रॉपर्टी थी, वो अब लिस्ट नजर नहीं आई। कहता है कि मैंने कुछ जगह बेच के वहां फिर प्रॉपर्टी, वो जो मर्जी कहें, वो जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने आपको बताया ना, उनके बारे में ये पाकिस्तान का मसला तभी हल होगा जब ये जो ग्रुप है इसको उतारा नहीं जा सकता जब तक। इसीलिए चाइना ने भी इस चीजों का जिक्र किया है कि आप पहले सियासी इस्तेहकाम लाएं, मुल्क में एक अच्छी हुकूमत लेके आए, फिर हमारे साथ बात करें, फिर हम आपके साथ बात करेंगे। अच्छा नहीं गुरैज साहब, वज़ीर-ए-आला निगरान सेटअप में तो जर्नलिस्ट लोग आते ही रहे, हसन अस्करी साहब आए, नजम सेठी साहब आए, और भी दीगर कई लोग इसी तरह आते रहे, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि मोहसिन नकवी का किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आला तो ठीक है वो बन गए, एक तो वो 1 साल तक जनाब उन्होंने दबंग तरीके से जो भी इक़्तिदार को जनाब पूरा इंजॉय किया ना, इंजॉय किया। चलो उन्होंने अपनी पोजीशन से इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, इंजॉय किया, हुकूमत को इंजॉय किया उन्होंने। अब वो किसी जमात से उनका कोई तलक नहीं है, सेंटर मुंतखब हो गए हैं, फिर वो जनाब आपके वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब उनके बारे में कहते हैं ये तो इनकी मेहरबानी है, ये वज़ीर दाखिला है। वो कहते हैं अगर ये चाहे तो ये वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। राणा सनाउल्लाह की तो बात छोड़ देना आप, वो तो कोई बात तो ठीक करते हैं, वो ठीक बात नहीं कर रहे। अगर यानी कि अगर उसको पता हो कि ठीक क्या है और गलत क्या है तो वो लोग हुकूमत में जाते ही ना। अच्छा, मैं आपको अब आप देखें कि वो हुकूमत में है लेकिन फैसले कोई और कर रहा है जी। फिर आप कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तक वो बदल नहीं सकते। अच्छा, तो वो क्यों फिर अंदर हैं? अगर वो ठीक बात करते हैं, वो ठीक बात करनी उन्होंने सीखी नहीं है। अच्छा, वो सच पे उनका कोई एतकाद नहीं है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ इस मामले में थोड़ा सा आड़े आए थे। मियां नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत समेत मुक़्तदर के जो आला लोग हैं, जो यानी कि हमारी हुकूमत चलाने में जो किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने से शिकवा किया कि जी ये मोहसिन नकवी आपने हमारे खाते में डाल दिए, इनका हमारे से क्या तल्लक है? ये तो राणा सनाउल्लाह को होना चाहिए था। राणा सनाउल्लाह के पास सीट तो है कोई नहीं। आप मुझे ये मैं एक बात करता हूँ, जरा सुन लें। दूसरा उन्होंने कहा जी ये वज़ीरे दाखिला के साथ दूसरा आपने हमारे जनाब ये औरंगजेब साहब को ले आए हैं। आप मुझे एक बात तो उन्होंने कहा जी आप किन को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा औरंगजेब साहब की जगह तो हमने इसहाक डार को रखना था। अब मैं तो इसहाक डार साहब को उन्होंने देखे कि नायब प्राइम मिनिस्टर बना दिया और राणा सनाउल्लाह को उन्होंने सियासी मशीन बना दिया। यानी कि वो तो कहते हैं आप बताओ जिसको जहां एडजस्ट करना है वो तो कर रहे हैं। अब आप ये बताएं ठीक कि उन्होंने उनको कहा कि जी ये आप नकवी साहब को क्यों ले आए जनाब? तो उनका क्या जवाब था? उनका ये जवाब था जिस तरह हम नकवी साहब को लेके आए इसी तरह आपको लेके आए जनाब।
हाँ जी, आप और उनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि शायद ये बात हम लियाकत चट्टा से पूछ लेते हैं कि इसको कैसे लेके आए और आपको क्यों नहीं लेके आए। वो कहते हैं आपको भी वैसे लेके आए, इंटरनेशनल मीडिया और ने- इसीलिए वो खामोश है कि वो उनसे पूछ नहीं सकते कि आप आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहती है कि हम बड़ी जमात हैं। अगर आप बड़ी जमात हैं तो आपके पास फरहान मिनिस्टर नहीं है, आपके पास वजीर खारजा नहीं है, आपके पास अपना क्या है, आप बताएं। गुरैज साहब, एक तो आप ये बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं कि अब मोहतरमा जो है वज़ीर आला बन गई हैं, तो अब आप उसकी सीट के पीछे पड़ गए हैं। आप कहते हैं जी आप अपने असल फॉर्म 45 लेके आए, और अब आप उसकी सीट को जनाब चाहते हैं कि हर सूरत जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, और दूसरा आप अमन चोरी के पीछे पड़े हुए हैं। सलमान अकरम राजा का चंद दिनों के बाद फैसला आने वाला है। सलमान अकरम राजा जो है वो शायद देखिए इस तरह तो बहुत सारी सीटों पे 3 सीटें इस्लामाबाद की। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में 317 दरखास्तें चल रही हैं, जी हाँ, लेकिन कुछ दरखास्तों पर सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला जल्द आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और इस्लामाबाद की 3 सीटों पे आने वाला इस्लामाबाद है। की 3 सीटें, तो अगर गुरैज साहब वो हुकूमत ले ही बैठे हैं, अगर उन्होंने मिन्नत तरला करके, गुरैज साहब उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने बड़े बूट आए हैं, उन्होंने बड़े जनाब बड़ी आपके सामने आपका बानी यही कहता रहा कि जनाब ये डिग्गी में बंद होके जाते रहे हैं। तो गुरैज साहब डिग्गी में बंदा बंद वो तो सांस भी घुटना शुरू हो जाता है, तो पता नहीं वो कैसे जनाब वो सांस बंद करके कि किसी को पता भी ना चले तो डिग्गी में बैठ के जाया करते। इतना तो गुरैज साहब अब उनको इतना तो आप मिलना चाहिए ना, एक बंदा इतनी जनाब परेशानियों में डिग्गी में बैठ के और चोरी छपे मुलाकातें करता रहा, और फिर उसे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो मिला है ना जी, प्राइम तो मिनिस्टरशिप मिल गई है, चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई है, गाड़ियां मिल गई हैं, इख्तियारात मिल गए हैं, लूटमार का लाइसेंस मिल गया है, माफियाज को कंट्रोल करने का लाइसेंस मिल गया है, माफिया से हिस्सा लेने का तो लाइसेंस मिल गया है। पीछे क्यों पड़े हुए हैं जो आप कहते हैं कि जी ये मोहतरमा की सीट वापस आए, ये जनाब वो इस नहीं जी, ये तो देखें जी, ये तो पूरे आपने इंटरनेशनल मीडिया से जनाब बड़ा वो मियां नवाज शरीफ की बड़ी जनाब सुबकी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया ने वो जनाब को उन्होंने कहा खतून कैंसर की मरीज है और वो जेल में बैठी हुई है, और उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून का कायद अगर हकायक को देखा जाए तो उससे हार गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, ये तो अब ये नहीं, अब सच ना बोलें। देखिए मुस्लिम लीग नून का कायद है, बड़ी मुश्किल से हम बाहर से लेके आए हैं उसको, वो इस मुल्क का असासा है, उसके आने से रौनक लगी हुई है। नहीं देखिए, उसने 28 मई को धमाके करके आपका सर फखर से बंद कर दिया। आप उसको पाकिस्तान मानिए। की वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, जनाब लेकिन वो मेरे सरबराह जो हैं वो अब बजट सेशन होने लगा है। हमारे ना बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है। अपने मेज़बान यूनुस बाट और जनाब जुनैद इकबाल गुरैज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।